Hello students, this is Munna Dev from KPS Academy. Today, due to network issues, I am available on YouTube channel now, and today's chapter is chapter 9 from EVS, that is Environmental Science, and chapter number is 19, that means Concept of Sustainable Development. So today I am going on to discuss a new chapter which is Concept of Sustainable Development. So before I start my class, I would like to discuss what is सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आप लोगों को हर किसी को जानना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. नाउ एवरीवन नोज द डेवलपमेंट इज़ द प्रोग्रेस. डेवलपमेंट मीन्स टू डेवलपिंग और डेवलप फ्रॉम अर्लियर स्टेज टू प्राइम स्टेज और मेन स्टेज, एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट and the sustainable development. Today we are going on to know what is sustainable development. Sustainable development means the development which cannot destroy our present development, and in near futures our next generations will not be deprived for today's development. Now let us start what is sustainable development. इसके बारे में जानना शुरू करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि इफ़ प्रेजेंट डेवलपमेंट is directly affect in future generation, that will not be a sustainable development. अगर हमारे आज का जो डेवलपमेंट है ये अगर फ्यूचर के डेवलपमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा या कोई इफेक्ट फैलेगा या फैलाएगा, तो इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल नहीं सकते. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होगा कि आज हम लोग ऐसा कुछ करें या हम लोग आज का जनरेशन को डेवलप करें, साथ ही साथ ये हमारे फ्यूचर जो होते हैं, फ्यूचर का जो जनरेशन है उन लोगों का भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो. तो इट विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अस. नाउ लुक origin of the concept of sustainable development. So before I start, everyone have to know origin, man, how sustainable development comes from the stage or comes from our studies. In a United Nations Conference on Environmental and Development, the Earth Summit, so-called Earth Summit, in the year in 1992, held in Rio in Janeiro, the world leaders signed framework conventions on climate change and biological diversity. So there, in the meeting of Earth Summit in the year of 1992, they bring out the world leaders signed a framework convention on climate change and biological diversity. As we know, today's world, day by day we are suffering various types of diseases due to global warming, and various chemical and various biological changes have been occurred in our earth, and so this is the reason and this is the causes for different diseases globally. So they have decided in the 1992 that globally we will make or we will confer a studies to stop this, and the generation need a studies and research to stop such type of development. So it will in near future it called they bring the new topic, that is sustainable and sustainability, and after few years is bring a new concept, that is sustainable development. The Rio Summit adopted Rio Declaration for achieving sustainable development in the 21st century. It is here the concept of originated. Now look, carrying capacity concept. This is the first concept. What is carrying capacity concept? Development requires resources for the production of goods and services. The resources are basically provided by the nature and thus known as natural resources. तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं, नेचर ऑल द रिसोर्सेज कम फ्रॉम अवर नेचर. So the resources are basically provided by nature and called nature resources. We must learn to respect nature and use the resources in a judicious and responsible manner, failing which will deprive our future generation from these natural resources, hereby endangering their life on this planet. तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को इसको ये भी जानना होगा कि आज हम लोग जो रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, इससे ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उस रिसोर्सेज को ऐसा इस्तेमाल करें, ऐसा एक्सप्लॉइट करें कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं
उन लोगों के ज़िंदगी में या उन लोगों का जो जनरेशन से इससे स्पॉइल हो जाए या बैकवर्डेड हो जाए. So we have to think, we have to focus our present world and present development, and the total concept and total subject is called sustainability or sustainable development. Population growth coupled with unplanned and ruthless exploitation of natural resources in the name of development is the root cause of our present state of environment. Population growth coupled with unplanned and ruthless exploitation. तो हम लोग जानते हैं कि आफ्टर 18 centuries, after 19th century, gradually our world population continuously increasing without any break, and in Southeast Asia. Yes, sorry for disturbing. In the Southeast Asia, like India, Pakistan, China, they have occur the almost 70% of all population. So this population, economically and politically and everywhere, is distract many resources. Population growth compiled, unplanned, and restless. Economic development is absolutely necessary for the welfare of people, and even though it causes damage and destruction of our environment. तो देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से ही जो हमारे फॉरेस्ट हैं या डिफरेंट जो अलग से सेक्टर्स हैं, इनके ऊपर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट फैल रहे हैं. With economic development, increasing use of natural resources in inevitable. Also, the increasing population, these are bound to be tremendous increase in the use of resources. But the $1,000,000 question is, how do we use our resources? Can we use them to so efficiently that we are able to conserve them, save them, and use alternate and non-conventional resources and allow them to regenerate so that we do not run out of their stock. तो हम लोग को ये जानना होगा कि हम लोग अपना जो रिसोर्सेस हैं कैसे उसको इस्तेमाल करें, और ऐसे इस्तेमाल के नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और रिसोर्सेज को कैसे रीजनरेट करें. इसके ऊपर हम लोगों को लॉन्ग स्टडीज़ चाहिए, और इसके ऊपर ही क्या है आजकल जो टुडेज़ का जो वर्ल्ड जो है, इसके ऊपर दे हैव फोकस्ड इट हाउ टू प्रिजर्व आवर रिसोर्सेज. वी हैव टू हैंड ओवर द अर्थ विथ इट्स एनवायरनमेंट क्लीन एंड इंटैक्ट टू आवर फ्यूचर जनरेशंस. तो आज हमारा जो जनरेशन है आफ्टर 1920 या 1925, दिस जनरेशन विल बी टोटली डिमिनाइज फ्रॉम द अर्थ. तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो आज के हमारे बच्चे हैं, फ्यूचर में उन लोगों को हो, उन लोगों के लिए हम क्या रख के जा रहे हैं, ये है जो स्टडीज़ है. दिस स्टडीज़ इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडीज़. वी वो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैम, सो इज बाइंडिंग इन आस नॉट टू एक्सप्लोर आवर एनवायरनमेंट बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी. तो हम लोग आज से ही या इसको पढ़ने के बाद इसे जानेंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, कि जो इसका कैरिंग कैपेसिटी जितना वो कंट्रोल कर सकते इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. बस आज हम लोग ऐसा कर रहे हैं. हम लोगों के वजह से ही बहुत सारे पहले 2 साल में 3 साल में एक बार सुनामी या वगैरह जो उसको क्या बोलते हैं तूफ़ान आया करते थे और स्टॉर्म आया करते थे. आजकल के टाइम पे देखोगे कि 2-3 महीने के बाद बड़े बड़े स्टॉर्म आ रहे हैं. इसका रीज़न यही है कि हम लोगों का जो अर्थ है उसका जो बायोलॉजिक एनवायरनमेंट का जो टोटल सिस्टम है उसको हम लोगों ने बिगाड़ दिया है. द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी विल बिकम क्लियर बाय यूजिंग द फेमिलियर एग्जांपल ऑफ एनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइक ए कार और बस. What is the carrying capacity of a car? It is a maximum number of people it can carry without breaking down in the middle of a journey. If the number of passengers or people traveling in a car become more than its capacity to carry, then it runs slowly and may even break down in the middle of the road. Thus, carrying capacity is the maximum pressure or load that a system can withstand before the. They have given a suitable example that if a car, like a car, the passengers capacity a car must not will be greater than 5, 6 and 7. If they carry maximum 10 or 20 people in a car, it's mean आप लोगों को क्या करना कि अगर कैरिंग कैपेसिटी एक कार में 6 है, आप लोगों ने 10-12 उसमें उठा लिया तो क्या होगा, चलेगा, पर इसका स्पीड भी क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और आप लोग जिस डेस्टिनेशन में जाना चाह रहे थे वहाँ तक जा नहीं पाओगे. मैं भी ये हाफ में ही उसका ब्रेक डाउन हो जाए, ख़राब हो जाए.
सो अर्थ का कैपेसिटी भी सेम ही है कि हम लोग उसका जो अर्थ का जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी किससे ज़्यादा अगर हम लोग रिसोर्स के लिए इसके ऊपर एक्सप्लॉइट करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हमारा अर्थ बीच में ही हम लोगों का सपोर्ट छोड़ दें। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने ये जान लिया। तो हम लोग अभी आज का जो सबसे प्राइम टॉपिक जो होते हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने और जो आपको पहले सीखना है कि एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं वो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानना है। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ह्यूमन ग्रीड मस्ट बी कंट्रोल एंड ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। तो हम लोगों को पता है कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जो लालच है या ग्रीडीनेस है ये कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान जितना भी रिच हो जाए उसको उतना ही ज़्यादा रिच होना है। किसी चीज़ को इंसान ऐसा भी नहीं पाने के बाद वो मतलब कि सेटिस्फाइड होता है, उसको और ज़्यादा चाहिए। वी मस्ट ट्रीट आवर एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स विद रिस्पेक्ट एंड स्टॉप देयर रेकलेस एक्सप्लॉइट ऑफ नेचर रिसोर्सेज। Sustainable development emphasizes that rate of consumption and use of natural resources must balance. The rate at which the resource can be either substitute or replace. Economic and industrial development must go on in such a way that no irreparable damage or be done to the environment. The World Commission on Environment and Development defines sustainable development. देखो अभी अब जो मैं पढ़ने वाला हूँ या जो बोलने वाला हूँ यही आपका क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। कि वर्ल्ड कमीशन का जो थ्योरी है और जिन्होंने ये बोला है, देखो, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो देखो आज का जो नीड है, हम लोगों का जो ज़रूरत है, इसको जितना ऐसा नीड ऐसा होना चाहिए आज का वाला कंप्लीट करने के बाद अगर आपका फ्यूचर में उसका कोई प्रॉब्लम ना आए तो उसको बोलेंगे आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि आज आपको मतलब कि सोचो कि आपको मिल्क चाहिए, तो आज के बच्चा इतना मिल्क खा रहा है, इतना मिल्क पी रहा है कि उसने गाय को ही मार डाला या गाय के बच्चे को ही मार डाला। मिल्क खाते खाते पीते पीते गाय के बच्चे ने मिल्क नहीं पाया, तो इससे क्या होगा कि आपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं रखा। फ्यूचर जहाँ रिसोर्स का जो मेन स्ट्रीम था, गाय का जो माँ होते हैं उसको ही आपने मार डाला या बच्चे को ख़त्म कर दिया, मतलब फ्यूचर में कुछ नहीं रहा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होते हैं कि मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको आपको लिखना है व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और पॉइंट्स दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड कंसिडर। व्हाट इट महात्मा गांधी से अबाउट इनफलेसनेस। इसको छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि गांधी जी का यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्स एबिलिटी। Rapid population growth coupled with demand of man for material comforts has put tremendous pressures on Mother Earth and its environment. In India, human populations has already crossed 1 billion. In a very short history of Earth, humans and their activities are having significant impact on the natural dynamics of the Earth system. So, during our studying beginning of the chapters, I have already told that China and India have crossed, the two countries have crossed approximately 250 crores of world population. So for this reason, इससे क्या हो रहा है कि रैपिड पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ कपल्ड विद द डिमांड ऑफ मैन एंड मटेरियल कंफर्ट्स। तो पॉपुलेशन जितना इंक्रीज होगा उनका नीड और रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसके वजह से क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज, तो हम लोगों को पता है कि ऑल द रिसोर्सेज कम आउट फ्रॉम आवर मदर अर्थ। तो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स चाहिए एंड द लैंड आर सेम इक्वल। तो क्या हो रहा है इससे, जो हमारा जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे रिवर सिस्टम ख़त्म हो रहे हैं और बहुत सारे जो हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे इंक्रीजिंग आवर ग्लोबल वार्मिंग। सो द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फूड प्रोडक्शन, industrial development, international commerce, energy productions and urbanizations, and transforming the earth system at various skills ranging from local to global. The disruptive influence of some agricultural and animal husbandry practices
on unsuitable land, and the destructions of tropical rainforest and destruction of some ocean fisheries are all caused directly and indirectly by human population growth pressure. तो पॉइंट यही है कि आपको यही जानना है कि पॉपुलेशन ग्रे मतलब कि लार्जर होने के साथ साथ रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और रिक्वायरमेंट इस्तेमाल इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा जो अर्थ के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स के लिए रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं, और रिक्वायरमेंट पूरा भी हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारा अर्थ जो चलना था और 200 साल इससे पहले वो 100 साल में ख़त्म होने वाले हैं। तो इसको भी हम लोगों ने थोड़ा कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में कॉमन एंड प्राइवेट रिसोर्सेज के ऊपर डिस्कस करेंगे, और कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएडिक्वेट अनफेयर एंड एक्सोरेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लाइव क्लासेस होंगे लाइव क्लासेस में। एंड नीड टू कंजर्व एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम लोग डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो इतना लंबा क्लास में यहाँ पर यूट्यूब में कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसे भी नेट के इशू के वजह से मैं अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। तो इस क्लास का फिर से मतलब कि ऑनलाइन डायरेक्टली क्लास होगा, तो आप लोग थोड़ा ऑनलाइन में टीच मी इन में ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट डे इसका फुल क्लासेस में। फिर से मैं आपको ऑनलाइन ये क्लास को समझा दूँगा। तो आज के लिए वीडियो को देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो।